लेंथ की यूनिट मीटर में होती है, isn't it? The unit of length is in meters. And area की यूनिट भी we represent in the terms of meters. Volume is also, we express it in the terms of meter. So, what is the difference among all these quantities? How will we differentiate among these quantities that it is length, that is area, or that is volume? Yes, to understand and to learn this whole topic, let's count with me and learn the dimensions of physical quantities. ऐसा क्या वो चीज है कि अगर ये डायमेंशन हमें नहीं क्लियर होती तो क्या हम पता लगा सकते कि लेंथ की यूनिट भी मीटर में होती है? लेंथ, we measure length in meters, we measure unit of area in meters, we express unit of volume in meters. So how? अगर हमारे पास ये डायमेंशंस जो हिंदी में विमाएं कहलाती हैं वो नहीं होती तो क्या हम सब लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का? यस, सो इसी को जानेंगे आज के हम इस टॉपिक में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमानी सोनिया है। मैं आप सभी का अपने नए टॉपिक क्लास 11 फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में स्वागत करती हूँ। सो लेट्स कम एंड लर्न विद मी। Dimensions of physical quantities. What are dimensions? So, to understand it, understanding dimensions of physical quantities. In this topic, we'll explore the concept of dimension of physical quantities and how they are expressed in various units. इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को के लिए डायमेंशन वर्ड जो यूज किया है वो है क्या, वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसे यूनिट में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यही हम पढ़ेंगे इस टॉपिक। डायमेंशंस होती क्या है, क्यों यूज है इनका? Dimensions help us to understand the nature of physical quantity and are crucial for making accurate measurements and calculations. Dimension हमें बताती हैं कोई भी physical quantity का different type में physical quantities we have learned. Length, mass, time, so many physical quantities. डायमेंशन हमें बताती हैं कि फिजिकल क्वांटिटी में एक्यूरेट मेजरमेंट को और कैलकुलेशंस को कैसे फॉलो किया जाए। We'll learn about the fundamental dimensions and how they are derived for different physical quantities. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल डायमेंशंस। जैसे हमारे पास 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स थी फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल यूनिट्स, उसी तरह से डायमेंशंस भी 7 फंडामेंटल डायमेंशंस भी होती हैं। अब उन केवल 7 डायमेंशंस से तो हमारा काम नहीं चल सकता था। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज बहुत है हमारे पास, उसी तरह से हमें डायमेंशंस भी हर क्वांटिटी की इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। बाय दीज 7 फंडामेंटल डायमेंशंस वी कैन डिराइव more and more physical dimensions for different physical quantities. So, this is all about dimensions. Now, here is the picture of dimension of physical quantities. देखिए यहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी डायमेंशन लिखी। अब अगर आपको उनकी फॉर्मूलाज पता हैं इन मैथमेटिकल टर्म्स,
तो वी कैन वेरी वेल कैलकुलेट द फिजिकल क्वांटिटीज का, उनका डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस. सो हियर देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की. वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट. 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या थी हमारे पास? लेंथ, we can represent it as capital L. Mass, we can represent it as mass capital M. And time. देखिए, हमें डायमेंशंस पढ़ने के लिए यहाँ 7, we are aware about these 7 fundamental physical quantities, but we want for dimensional formulas only these 3 basic quantities. These are length, mass and time. Whenever we represent our physical quantities dimensions, we always represent the dimension in the form of MLT. Capital M, L, T in M, L, T in the form of in a square box. This is the representation of dimensions of any physical quantity. We learn more about how will we express different dimensions in for different physical quantities. So ये concept आपको यहाँ पे clear हुआ. अब आगे देखिए. As we have the formula of area. What is the formula of area? Formula of area is length into breadth. Both are in length. We measure breadth is also in the form of length. ऐसे आपके पास टेबल है, लैपटॉप है, बुक है, आपको उसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेकिन दोनों होती तो लंबाई है ना, लेंथ ही होती है. तो वी एक्सप्रेस इट इज इन लेंथ इंटू लेंथ, काइंड ऑफ लेंथ. ब्रेथ इज ऑल्सो लेंथ, काइंड ऑफ लेंथ. अब हम जानते हैं लेंथ का यूनिट इज मीटर. सो बोथ यूनिट विल बी मीटर, मीटर. सो इट विल बी मीटर स्क्वायर, इजंट इट? अब हमने यहां पढ़ा the measurement, the dimension of, or we can say length का representation जो हमने पढ़ा था in dimension analysis, that is in square box capital L. So for meter it will be represented as L square. What? This is the dimension of area, the physical quantity area. ये यहाँ पर डायमेंशन हो गई एल स्क्वायर, फिजिकल क्वांटिटी एरिया. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट कोई भी फॉर्मूला आप ले सकते हैं. वी कैन डिराइव एनी फिजिकल कैलकुलेट फॉर वॉल्यूम. द फॉर्मूला विल बी L into B into H, then it will be L cube simply, or we can solve it. So meter into meter into meter, that will be meter cube. Then formula will be, dimension will be L cube. Next, आप कुछ भी ले सकते हैं. Next is we can take velocity. Velocity. What is the formula of velocity? So the formula of velocity is length upon time. Length upon time. Time के length upon time. Velocity का formula है. तो length is in L and time is in T. Dimension will be LT minus 1. T ऊपर जाकर, और we'll represent it in square bracket. So it will be dimension of velocity. Got it? So इसी तरह से आप सभी more and more dimension calculate कर सकते हैं. अब हम आगे चलते हैं, कुछ big dimensions ले लेते हैं. So next we are taking acceleration. 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 Acceleration का डायमेंशन निकालेंगे अब हम. फॉर्मूला इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो वेलोसिटी अभी हमने देखा LT minus 1. नाउ इट विल बी टाइम मोर, तो इट विल बी LT minus 2. दिस विल बी द, सो इस तरह से डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज LT minus 2. सो अब आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी डायमेंशन. हियर द ब्यूटीफुल पिक्चर. एरिया,
लेंथ इंटू लेंथ मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम लेंथ क्यूब मीटर क्यूब, डायमेंशन यहाँ रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से आप कोई भी डायमेंशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट बुक ये सभी बुक्स में इजीली दिया है आपके पास। यू कैन यूज बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूलाज, and you can derive basic fundamental physical quantities formula and you can derive any dimensional quantities. Okay, तो आज हमने यहाँ पर यही पढ़ा कि how will calculate dimensions। तो आप ये पढ़ेंगे और सभी dimensions लर्न करना very important है for our future. Whatever exam you will give, competition exam or your school exam, dimension should be learned or I can say it should be cracked in the form of, मतलब बहुत अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए कि हाँ इसकी ये डायमेंशन है। अब नहीं कुछ बच्चे लर्न इन माय कॉन्सेप्ट, मैं तो रटन विद्या पे विश्वास नहीं करती, क्रैमिंग इज नॉट अ माय पार्ट ऑफ स्टडी। आप सिंपली क्या करेंगे, इन्हें समझ भी सकते हैं, जिस तरह से आप फॉर्मूला लर्न करते हैं फॉर्मूला को लर्न कीजिए एंड उनसे कैलकुलेट कर लीजिए एनी टाइम डायमेंशंस, बट इतना आपके माइंड में भी कैलकुलेशन होनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम आगे करेंगे कंटिन्यू, और विद मोर ऑफ दिस चैप्टर टॉपिक्स। सो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। हिमानी के साथ जुड़े रहिए इन माय फिजिक्स क्लासेस। धन्यवाद, आपका दिन मंगल में हो। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।